Good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 13 Phrasal Verbs. So, before starting this exercise, first of all, we will read this paragraph. I set off for the gym in the morning. My bicycle broke down, so I boarded a bus. As soon as I got off, I came across my cousin. He was coming out of a shop with 3 bags. Suddenly, someone crashed into him. Before either of us could react, the man ran away, snatching 3 bags. We ran after him, but the thief was not caught. What did the bags contain? Old newspaper. You would have noticed that the verbs in red have more than one part. So you have read this paragraph and you have also noticed that red color words have two parts. जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पर सेट प्लस ऑफ, सेट ऑफ, ब्रोक ब्रैकेट में लिखा है ब्रेक प्लस डाउन, सो ब्रोक डाउन और ब्रेक डाउन मीन्स जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं. So write the phrasal verbs from the passage above, showing the parts separately. So जितने भी phrasal verbs यहाँ पर रेड कलर में लिखे हुए हैं वो सबको आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स में लिखना है. So got plus off, got off, came plus across, came across, coming plus out, coming out, crashed plus into, crashed into, ran plus away, ran away, ran plus after, ran after. Okay, so do this exercise in your textbook with the good handwriting. Now let's see here. There is one more paragraph is here. So underline the phrasal verbs in the following text. One has been done for you. So यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है. वो पैराग्राफ के अंदर जितने भी फ्रेजल वर्ब है उन सब के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. So let's start with me. Millie and Cyrus wanted to look for an adventure. So first जो लाइन है उसमें look for के नीचे अंडरलाइन की है क्योंकि look for जो है वो फ्रेजल वर्ब है. They set off at down on their bicycle. So यहाँ पर आपको set off के नीचे अंडरलाइन करना है. They were cycling around the countryside when it began to pour with. So यहाँ पर आपको pour with के नीचे अंडरलाइन करना है. Pour with rain. They came across an old abandoned barn. So यहाँ पर आपको came across उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. They remembered hearing about the barn from their mother, who had warned against going into it. But they were explorers and they had to go in. They got off their bicycle and entered the barn. So यहाँ पर आपको got off के नीचे अंडरलाइन करनी है. It was dark. Millie pulled out a torch from her backpack and switched it on. The barn lit up and they saw that they were walking around. So यहाँ पर आपको walking around के नीचे अंडरलाइन करना है और यहाँ पर get off के नीचे. In dust cobwebs, the light from the torch fell on. So यहाँ पर आपको fell on के नीचे अंडरलाइन करना है. Bats hanging from a beam. The bats began screeching and flying at them. Millie dropped the torch in the confusion. Cyrus crashed into his sister and they both fell through a gap in the floorboard. So यहाँ पर आपको fell through के नीचे अंडरलाइन करनी है. Millie looked around and found the torch. She switched it on and it shone on a trapdoor. So यहाँ पर आपको looked around के नीचे अंडरलाइन करना है. So यहाँ पर जितने भी phrasal verbs लिखे हुए थे उन सब के नीचे हमने अंडरलाइन कर दी है. So now look at here. Question number 2. Now write the phrasal verbs below showing their parts separately. So जितने भी phrasal verbs यहाँ पर लिखे हुए थे वो सब आपको यहाँ पर 2 पार्ट में सेपरेट करके लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है. Set plus off, set off, pour plus with, pour with,
केम प्लस अक्रॉस केम अक्रॉस, गॉट प्लस ऑफ गॉट ऑफ, लीट प्लस अप लीट अप, वॉकिंग प्लस अराउंड वॉकिंग अराउंड, फेल प्लस ऑन फेल ऑन, फेल प्लस थ्रू फेल थ्रू, एंड लुक्ड प्लस अराउंड लुक्ड अराउंड. Okay, now let's see here on this page. Question number 3. Underline the 3 different types of phrasal verbs in the sentences below. Mark EM ब्रैकेट में लिखा है एग्जैक्ट मीनिंग, SM ब्रैकेट में लिखा है स्पेशल मीनिंग, और EMPH मीन्स एम्फेसाइज अगेंस्ट देम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन सब में फ्रेजल वर्ब्स के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और वो SM है, EM है या EMPH है वो आपको ब्लैंक्स में लिखना है. SM का मतलब होता है स्पेशल मीनिंग, EM का मतलब है एग्जैक्ट मीनिंग, और EMPH का मीनिंग है एम्फेसाइज अगेंस्ट देम. सो लेट्स सी A. When the plane takes off, everyone has to sit down and fasten the seat belts. सो यहाँ पर टेक ऑफ के नीचे अंडरलाइन किया है और यहाँ पर लिखा है SM मीन्स ये स्पेशल मीनिंग वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है SM. बी में देखो, द थीफ jumped out of the window and ran away. He got away by jumping onto a speeding truck. सो यहाँ पर आपको गॉट ऑफ या सॉरी गॉट अवे उसके नीचे अंडरलाइन करना है क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है, और वो कौन सा फ्रेजल वर्ब है तो वो है स्पेशल मीनिंग वाला. द थीप जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, तो जो चोर था उसने क्या किया, विंडो से वो बाहर कूद गया एंड रैन अवे. ही गॉट अवे बाय जंपिंग ऑन टू अ स्पीडिंग ट्रक, और वो जंपिंग करके कहाँ पर बैठ गया, तो जो स्पीडिंग ट्रक आ रही थी उसके अंदर बैठ गया. तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये स्पेशल मीनिंग निकलता है कि थीप विंडो में से कूद गया और दौड़ के वो कहाँ पर, तो स्पीडिंग जो ट्रक आ रही थी उसमें बैठ गया. सी. इट्स स्नोइंग आउटसाइड, सो पुट ऑन योर कोट और यू मे कैच अ कोल्ड. सो यहाँ पर पुट ऑन उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है, और लाइन में आपको लिखना है EM मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग. सो यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग वाला सेंटेंस है. इट्स स्नोइंग आउटसाइड मतलब बाहर स्नो हो रहा है. सो पुट ऑन योर कोट और यू मे कैच कोल्ड, तो आप कोट पहन लो क्या, ताकि आपको, वरना आपको क्या हो जाएगी, तो सर्दी हो जाएगी नहीं पहनेंगे. तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट मीनिंग वाला सेंटेंस ही बनता है. डी में देखो, द फूड वॉज सो गुड tugged into everything, our host took care of us in every manner. सो यहाँ पर आपको tugged into उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और ब्लैंक्स में लिखना है SM मीन स्पेशल मीनिंग वाला सेंटेंस है ये. ई में देखो, माई स्कूल बस कम्स एट 6:30 AM, सो आई हैव टू गेट अप क्वाइट अर्ली. स्कूल बस 6 बजे आ जाती है इसलिए जल्दी उठना है. तो यहाँ पर गेटअप के नीचे अंडरलाइन करो और लाइन में लिखो EM. F. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द फूड इन द फ्रिज हैज़ गॉन ऑफ. सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा, खाना जो रखा है तो वो बिगड़ सकता है ना, अगर काफ़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती 1-2 दिन तक, तो जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो शायद बिगड़ भी जाए. गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है. सो यहाँ पर आपको गॉन ऑफ के नीचे अंडरलाइन करना है और यहाँ पर लिखना है SM. जी में देखो, आई डोंट नो द आंसर, आई गिव अप. सो यहाँ पर आपको गिव अप के नीचे अंडरलाइन करनी है और यहाँ लिखना है SM. सो इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखनी है, और यहाँ पर जो एक्टिविटी दी है वो भी आपको करनी है. उसके अलावा यहाँ पर भी एक दूसरी एक्टिविटी दी है वो भी आपको घर पे करनी है. नाउ लेट्स सी मैच इट हियर. क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद देयर मीनिंग. सो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लिखे हुए हैं और यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है. सो वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट मीनिंग एंड वी हैव टू मैच इट. फर्स्ट में लिखा है बैक समथिंग अप, तो उसका मीनिंग निकलता है टू
रिवर्स। सो बैक का मतलब हमें पता है पीछे, और बैक समथिंग अप, तो थोड़ा आगे, वो अप ले जाना, तो आगे पीछे। तो गाड़ी जब हम घुमाते हैं तो रिवर्स में घुमाते हैं कि नहीं। फिर यहाँ लिखा है बैक समवन अप, तो उसका मीनिंग लिखता है यहाँ पर टू सपोर्ट, टू सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, ब्लो अप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो अप। तो ब्लो अप को आपको ज्वाइन करना है टू एक्सप्लोड। फिर है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन आप यहाँ पर मैच करेंगे टू स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक समथिंग डाउन मीन्स टू डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कॉल बैक, कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल। अगर आपको किसी ने कॉल किया है लेकिन अगर आप बिजी हो तो कॉल उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप मिस्ड कॉल देख के उसको वापस रिटर्न में कॉल करते हो ना, सो दैट इज कॉल्ड टू रिटर्न अ फोन कॉल। चेक इन, चेक इन का मतलब है टू अराइव एंड रजिस्टर एट। चेक इन वर्ड जो है ज़्यादातर हम जब होटल में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, डू समथिंग ओवर मीन्स टू रिपीट। गिव इन, गिव इन का मतलब है टू एडमिट डिफीट। सो ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है। ओके, लेकिन जब आप मैच इट करो तो खास ध्यान रखना, अच्छे से मैच इट करना है। आगे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली। सो यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो जहाँ पर राइट है वहाँ पर राइट मार्क करना है, और जहाँ रॉन्ग है वहाँ पर आपको रॉन्ग मार्क करना है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है वो आपको वापस फिर से रीराइट करने हैं। फर्स्ट, एट द पार्टी रमा एंड माया टॉक्ड प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स अबाउट। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, सो उसे हम राइट करके वापस लिखेंगे। एट द पार्टी रमा एंड माया टॉक्ड अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। सो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पर अबाउट जो है उसे हमने यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है। ओके, सो अबाउट आपको यहाँ पर आगे टॉक्ड अबाउट उसके साथ यूज़ करना है। सो टॉक्ड अबाउट वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। सो यू हैव टू राइट हियर टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट B1 देखो, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड बट हीज जॉब एप्लीकेशन वॉज टर्न डाउन। सो ये सेंटेंस राइट है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। सी में देखो, विल यू ड्रॉप ऑफ ईट एट द पोस्ट ऑफिस। विल यू ड्रॉप ऑफ ईट एट द पोस्ट ऑफिस। सो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है, इसे हम राइट करके वापस लिखेंगे। विल यू ड्रॉप ईट ऑफ एट द पोस्ट ऑफिस। सो यहाँ पर ईट जो है वो आपको ऑफ के आगे लिखना है, और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, और यहाँ पर द यहाँ पर आएगा। ओके, सो विल यू ड्रॉप इट ऑफ एट द पोस्ट ऑफिस, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक वी वर एबल टू कैच अप विद द लेसन। सो ये सेंटेंस तो राइट है, इसलिए आपको इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। ई में देखो, व्हेन वी रीच द स्टेशन वी गॉट द ट्रेन ऑफ। व्हेन वी रीच द स्टेशन वी गॉट द ट्रेन ऑफ। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए आपको रॉन्ग मार्क करके नीचे फिर से रीराइट करना है। व्हेन वी रीच द स्टेशन वी गॉट ऑफ द ट्रेन। सो यहाँ पर आपको गॉट ऑफ साथ में लिखना है, यहाँ पर गॉट और ऑफ अलग अलग था, और यहाँ पर हमने एक साथ में लिखा है, इसलिए ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया है। नीचे देखो एफ, द प्रिंसिपल सेड दैट शी वुड टॉक द मैटर ओवर विद द टीचर्स। तो ये सेंटेंस तो राइट है, इसलिए आपको इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। जी में देखो, चूज द बुक्स यू वॉन्ट टू बाई एंड पुट देम असाइड। सो ये सेंटेंस भी राइट है, इसलिए आपको इसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है। एच, यस्टरडे आई रैन my friend into whom I had not seen since I left school.
सो यहाँ पर आपको लिखना है, ये सेंटेंस रॉन्ग है इसलिए आपको यहाँ पर वापस रीराइट करना है। यस्टरडे आई रैन इनटू माय फ्रेंड व्हेन आई हैड नॉट सीन सिंस आई लेफ्ट स्कूल। ओके, सो यहाँ पर हमने रैन इनटू इसको साथ में लिखा हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब है। आगे देखो, आई केम माई फ्रेंड अक्रॉस इन अवर स्ट्रीट। सो केम और अक्रॉस आपने देखा कहाँ पर केम है और कहाँ पर अक्रॉस है। तो केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसे हम साथ में मिला के नया सेंटेंस बनाएंगे। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन अवर स्ट्रीट। जे, कम हियर बैक आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस रॉन्ग है इसलिए रीराइट करके लिखना है, कम बैक हियर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। कम बैक हियर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके, सो नाउ लुक के अ बटन हैज़ कम माई कोट ऑफ। अ बटन हैज़ कम माई कोट ऑफ, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अ बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट, तो आपको कम ऑफ साथ में लिखना है, आई बटन हैज़ कम ऑफ माई कोट। लास्ट देखो, वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरी, तो ये सेंटेंस राइट है जिसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। ओके, सो इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज भी आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छे राइटिंग से लिखनी है। सो डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।